آج ہم ایک اہم موضوع کم عمری کی شادی پر خصوصی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. آج بات کریں گے کولو جو بلوچستان کا ایک دور دراز اور پسماندہ علاقہ ہے. ایک افسوسناک خبر سامنے آئی کل ایک نوجوان نے پریس کانفرنس کی جس میں کہا گیا کہ ان کے 11 سالہ بہن کو مبینہ طور پر 1.5 لاکھ روپے کے لیے اغوا کیا گیا. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے دوران بلوچ جو ایک سینئر صحافی ہے اور ان طرح کے واقعات پر گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے اس واقعے کی تفتیش کی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے دوران سے جانتے ہیں. بہت مہربانی دوران کہ آپ نے وقت دیا ہے اور اس عام موضوع پر آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کریم صاحب، آپ نے ایک بہت زیادہ بہترین ایشو کو اٹھایا ہے. ارلی چائلڈ میرج صرف بلوچستان میں نہیں، پاکستان بھر میں ایک بڑا مسئلہ ہے. حالیہ دنوں نیشنل اسمبلی میں امینڈمنٹ بلکہ اس پر بل بھی پاس ہوا کہ جو ہے ارلی چائلڈ میرجز ہیں ان کو روکا جائے. بلوچستان میں 4 مرتبہ اسمبلی میں یہ بل لایا گیا تھا لیکن یہ بل پاس نہیں ہو سکا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کی بدقسمتی ہے. قبائلی جو ہے اعتراضات کی بنیاد پر یہ بل روکا گیا تھا. گزشتہ دنوں آپ نے جس کولو کے واقعے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اس کے متعلق میرے ساتھ جو انفارمیشن آئی ہے، جو معلومات آئی ہیں، وہ بہت ہولناک ہے. کولو ایک ٹرائبل انفلوئنس کا علاقہ ہے، اس میں اس طرح کے کیسز آنا بہت زیادہ بے چینی پیدا کرتی ہے. اب جو گزشتہ دنوں جس لڑکے نے پریس کانفرنس کیا تھا کولو پریس کلب میں، لال خان نامی یہ لڑکا ہے، اس کا جو والد ہے انہوں نے اس پریس کانفرنس کو اسی دن رد کر دیا. اب معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا بنتا جا رہا ہے. اس لال خان لڑکے نے جو پریس کانفرنس کیا کہ میرے جو بہن ہیں 11 سال اس کو 1.5 لاکھ کے ایوز جو ہے اغوا کر دیا گیا، پھر مبینہ طور پر اس سے شادی کر دی گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا، جس نے اغوا کیا اس نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی. اب کچھ کنفرم نہیں ہے. کولو جیسے علاقے سے یہ خبریں آنا بہت زیادہ ممکن نہیں ہے، وہاں سے خبریں نکالنا، کوئی آپ کو اس چیز پر بات نہیں کرتا ہے. اب وہاں جن پر الزام ہے وہ بھی یہ الزام کو رد کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی نہیں کیا. غالباً 11 سالہ ہم اس کو بول رہے ہیں لیکن 10 سال وہ لڑکے نے جو ہے مبینہ طور پر 10 سال ہی بتایا تھا. انہوں نے الزام لگایا گاور خان کوئی نام بندہ ہے، ایک محمد خان نام بندہ ہے اور ایک شاہجہاں نام بندہ ہے. انہوں نے میرے جو بہن ہیں ان کو اغوا کیا اور شادی کیا. شادی کا بھی کوئی کنفرمیشن اب تک ہمارے سامنے نہیں آ چکی ہے. تو اس کے بعد یہ جو جن ملزمان پر الزام لگائے گئے ان کی جانب سے مبینہ طور پر جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی ریلیز کر دی گئی ہے. سر میں نام لال خان مالی شر بچہ اور میں ابا 1.5 لاکھ قرض دارا گنور خان ہے. ٹھیک ہے، وہ قرضہ نہیں اندا اشاں ات کو میں گوار بڑھتا، ٹھیک ہے، کولو رہا پولیس تانوا وٹا رہا میں گوار اوگا تو کشتو بڑھتا، ٹھیک ہے، بڑھتا ہوں دا بنا داشتیاں تھی. ادھر کشو خمر گنور خان ہے، گنور خان ہے، شاہ جان ہے اور یک محمد خان ہے. محمد خان جمیل لیبارٹری ہے ادھر کارا کا. ادھر کشتو بڑھتو ادھر ماں ادھر درخواست ضرورتیا اشتغا پولیس تانوا ادھر منا مجید ٹوچر کتا کہ ارگیں یہ پڑھائے اڑائیں تے متئی چکا 7 بوتل شراب اور 2 پسٹل کیس جنا ادا مامدر گرتگاں اتکاں ادھر یہ محمد خانہ منا پارٹی دھمکی دا تھا کہ ماترا پارٹی گرائنو. سر میں گوارے 10 سے 11 سال عمر ہیں. اشنی تصویر اشی وگندگی تھی اور اشیا برتو بنا افغا تو داشتیاں اشی خطرہ ہے نا، اشی چکا اشی عزت ہے اور اشی خطرہ ہے نا. ماں ایف سی کمانڈنٹ ڈی سی صاحب اور نواب چنگیز مریامی عرض ہیں ماں غریبیاں منا بڑا ہیں ماں غریبیاں منا یکس دن استے اور دوبارہ منا ٹارچر تو اور میں ہمیں دو گزارش ہے کہ ماں غریبیاں مجید میں چکا الٹا ہیں دوبارہ دروگیں کیسے جائیں نما تاکہ ایشی ابلاں اور کاروبار جکی تھا وہ کیسا ابلاں چلیں تا مخان ایشی اند رکھنا یمڑ دینا. اور میں ایشاں گزارش ہیں کہ منا بڑا ہیں ماں غریبیاں میں یمڑ دینا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا والد جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہاں نہیں رکتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے کہ اگر اس بچی کو اغوا نہیں کیا گیا تو جو ملزمان ہیں وہ آ کر پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟
وہ بھی प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो है वर्जन रखते हैं, लेकिन वो भी अपना वर्जन नहीं रख रहे। मुलजमान की जानिब से दरख्वास्तें तो पेश की जा रही है। अब इसमें और सनसनीखेज इंकशाफात हमारे सामने उस वक़्त हुए जब हमने इनके वालिद से रब्ता किया। इनके वालिद का जो गालिबन नाम है, इनके वालिद का नाम अली शेर है। उस टाइम बड़े इंकशाफात हमारे सामने आए जब हमने अली शेर से रब्ता किया। अली शेर ने कहा मेरा बेटी जो ये मुलजमान जिन पर मेरा बेटा जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है वो बिल्कुल ले गए। 1.5 लाख के एवज़ या 3 लाख के एवज़ मैंने दिए हैं, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ जो मेरी वीडियो बयान है वो भी मनगढ़ंत है, और जो दरख्वास्त लिखा गया है मेरे नाम से कि मेरा बेटे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो भी मनगढ़ंत फेक। थोड़ा सा ये वाज़ेह करें नाज़रीन को कि इसके वालिद ने अपने बेटे को हाक किया गया है। थोड़ा सा ये बता दें कि उसने FIR लिखवाया है और आप जो बात कर रहे हैं कि वो फेक है, थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें, क्लियर कर रही चीज़ को। मामला ये हुआ, दरख्वास्त लिखा गया वहाँ पर जो कोलू में एक ही पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने में दरख्वास्त लिखा गया है कि मेरे बेटे को जो है ये जो मामला कर रहा है मुझे अपने बेटी के देने पर कोई एतराज़ नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो मेरा जो बेटा जो कर रहा है उसका पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले। तो ऐसा कोई दरख्वास्त आया, मैंने उसको हाक किया है। हाँ, हाक किया है। लेकिन जब हमने इनके वालिद से बात किया तो वालिद कहते हैं, जो वालिद अली शेर नामी बंदा है वो इस वक्त कराची में या कि सिंध में मुकीम है। जो बेटी इनका है जिनको जबरी तौर पर या मुबैना तौर पर आप अगवा कह सकते हैं, उसको जो वहाँ शादी रचा लिया गया, ये बारकान के इलाके हैं, एक बूढ़ी मरी बूढ़ी वहाँ पर है। लेकिन चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई हैं कि कोई भी फरीक इसमें आने को सामने तैयार नहीं है। तो मुबैना तौर पर इनके जो बैठे हैं इसी दरख्वास्त की बुनियाद पर पुलिस ने उनको पकड़ा, पुलिस ने उनको मारा पीटा, अपने जो है तहवील में रखा। इसके बाद ये लड़का जो प्रेस क्लब आया तो प्रेस क्लब में लाल खान ने इन तमाम जो है वाक़यात पर पर्दा उठा दिया, पर्दा चाक कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे बहन के साथ ये हुआ, और मैंने इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है क्योंकि मैंने वालिद अगर राज़ी हैं भी तो मैंने रजिस्टर किया क्या मैं अपना 11 साल जो बहन है उसको नहीं दे सकता हूँ, शादी नहीं पे आ सकता हूँ, इतनी छोटी बच्ची है। अर्ली चाइल्ड मैरिज का भी आपके सामने पड़ा हुआ, जब तक 18 साल उम्र नहीं होता है। तो इस सूरत हाल में सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड इशू बना हुआ है, अब कोलू में जो DCI है वो भी रिसेंटली अजीम जान डोमार, अभी नए DCI आए, SP आए हैं, सईद शरीफ कलोड़ा साहब अभी आए। अब तक वो भी अभी तक सेटल नहीं हो पाए, वो आया नहीं, उनकी तकर्रियाँ 2-3-4 दिन हो गए। तो अब तक उनके साथ हमने जो कोशिश की रब्ता की ज़िला इंतज़ामिया के मतलब, उन्होंने भी हमें कोई ख़ास कोई क्लियर कट मौक़िफ़ नहीं दिया। डिप्टी कमिश्नर ने ये भी कहा कि हम जो है तहकीकात कर रहे हैं, जो होगा वो सामने लाया जाएगा। SP साहब ने भी ये कहा। तो मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके बाद दोबारा इस लड़के को आज अरेस्ट कर दिया गया। ये लाल खान को पुलिस ने अरेस्ट किया, और पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जो लाल खान है ये अपनी जो बहन का दावेदार है, ये किसी तोड़फोड़ में, गालिबन किसी तोड़फोड़ में, किसी नामालूम अफेयर में मुलविस था, तो उसकी बुनियाद पर हमने पकड़ लिया। तो उनका जो एडवोकेट है, वकील है सरदार वसीम अयाज, उनका भी मौक़िफ़ है कि भाई इस केस को क्यों दबाया जा रहा है, इस केस को सामने लाया जाए, सामने लाकर तमाम चीज़ें क्लियर की जाए, पुलिस के सामने बच्ची को लाया जाए, बच्ची खुद बताए कि वाकई वो 18 ईयर्स ओल्ड है भी नहीं है, दूसरा वो मर्ज़ी से है या 3 लाख के एवज़ या 2 लाख के एवज़ या 2.5 लाख के एवज़ जो बेचा गया, वो चीज़ें रखे। जिन मुलज़मान पर इल्ज़ामात हैं उनको सामने लाया जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब तक करीमन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें क्यों छुपी रहती है, इसके पीछे वजूहात क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दें कोली के तनाजुर में कि वहाँ पे माहौल किस तरह कबायली सिस्टम है, उस वजह से चुप रही है या कोई और वजह है? देखें, कबायली जहाँ ट्राइबल और फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वहाँ ये चीज़ें चलते ही रहते हैं। दैट्स इज़ द पार्ट ऑफ रूटीन। हमने इससे कबल देखा था कोलू के एक दूर दराज इलाके सफ़ेद, वहाँ एक खातून को जो है कत्ल कर दिया गया था, कुलाड़ियों के वार से मारा गया था बेदर्दी से। तो तब हमने देखा उस पर जो है बाद में फैसला उसके वालिद ने, जिस दामाद ने कत्ल कर दिया उसको माफ़ कर दिया, वालिद उसके उस लड़की के वालिद ने माफ़ कर दिया और 70-80 लाख रुपये ले लिए पैसे। और उस औरत की एक शीर खवार बच्ची थी, शीर खो, जो कि कोई गालिबन 5-6 महीने की, उसका भी किसी ने नहीं पूछा, भाई पैसे लिए दिए, मामला ख़त्म हो गया।
जहालत है, कोई बात नहीं करता, इन्वेस्टिगेट नहीं करता। अब हमने जब बात करने की कोशिश की, अब वहाँ बहुत सारे कबायली लोगों के साथ मैंने खुद पर्सनली कोशिश की कि बात करो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे, नो बडी इज़ विलिंग टू टॉक ऑन दिस। बोलता है इसको कबायली तरीके से हल करेंगे। भाई कबायलियत से पहले इस्लाम भी आता है, कबायलियत से पहले आपका जो है, इंसानियत भी आता है, बीइंग अ ह्यूमन। 11 साल बच्ची को कौन ब्याह करता है? बहुत सारे ऐसे वाक़े हमने इससे कबल भी देखे, लेकिन बात ये है कि वहाँ पर लोग बात नहीं करते हैं। बलूचियत की अगर हम बात करें तो हमें ऐसी मिसालें माजी में नहीं मिलती हैं, मतलब जो प्रोग्रेसिव बलोच सोच है उसमें तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। तो फिर वो कबाइलियत और बलूचियत वो कहाँ पे? बलूच बेसिकली एक सेकुलर माइंडसेट का जो एक कौम है, नेशनलिज्म से उनका ताल्लुक़ है। वो इन चीज़ों से, औरत का बहुत बड़ा मकाम है वहाँ, जहाँ अगर औरत चादर लाती है तो जंग ख़त्म किए जाते हैं, खून माफ़ किए जाते हैं। लेकिन अब वो बलूच, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वो बलूच नहीं रहे, कुछ न कुछ हैं, लेकिन बड़ी हद तक, बड़ी जो मॉडर्न एरा है इसके साथ जो करीबी इलाके जिनके साथ हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ लगते हैं, उनसे शायद ये चीज़ें फैल कर हमने आ गई है। हमने भी ये पैसे का लेन देन, खून का ख़रीद व फ़रोख्त, उसको तरजीह दिया है बजाय इंसानियत को तरजीह देने, बजाय लोगों की आवाज़ बनने के लिए। क्योंकि वहाँ बहुत सारे साफ़ी, हमारे साफ़ी दोस्त हैं, अहमद वरी साहब, अभी मेरा बात हुआ था यूसुफ वरी साहब, तो उनसे मैंने इस केस को काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, यूसुफ ने कुछ बताया, कुछ अमनवा साहब ने बताया। तो वो कहते कि भाई यहाँ हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं, हम मामलात को कैसे सुलझाएं। कभी ये खबर भी आता है कि भाई गालिबन बच्ची को कत्ल कर दिया गया, कोई कहता है बच्ची को मार दिया गया, कोई कहता है बच्ची को इधर कर दिया गया। अब डिप्टी कमिश्नर साहब से जो मेरी बात हुई थी तो वो भी इशारतन ये कह रहे थे कि अभी बच्ची जो है गालिबन हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के पैरामीटर से जो है बाउंड्री से बाहर है, तो वो भी इस पर काम कर रहे हैं। वहाँ जो कानून का रिट है उसको बरकरार रखना कबायलियत की वजह से बहुत ज़्यादा जो है लोगों को मसाइल का सामना पड़ रहा है, जिसमें ये इस तरह बच्चियों का वाक़या जो है रूटीन का हिस्सा बन चुका होता है। कभी किसी को जहर देकर कत्ल किया जाता है, कभी किसी को कत्ल कुल्हाड़ी के वार से, जो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। दौरान एक चीज़ बता दे, जब एक तो इस तरह दूर दराज इलाके जो खासकर कबायली निज़ाम में रहने वाले लोग मीडिया के सामने नहीं आते, नाम तक लोग गवारा नहीं करते, ख़वातीन का नाम लेना बुरा समझते, आयात बीबी का नाम सामने आ रहा है, तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा? केसेस दब कर रह जाती हैं। हमने देखा था खुशदार में एक बच्ची का वाक़या हुआ और बलूच ने और बलूचिस्तान के लोगों ने बड़े प्रोग्रेस है होकर उस वाक़े को उठाया और वो बच्ची रिकवर भी हो गई, आसमा बीवी। तो हम समझते हैं, हम तवक्को रखते हैं कि जितने सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं वो इस काज पर बहुत बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि हम सोशल मीडिया पर 2-3 दिन नारे मार के 2-3-4 पोस्टें करके हम कंक्लूड करें दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमें एक मुसलसल इस पर जो है आवाज़ उठाना चाहिए कि यार ये केसेस क्यों हो रहे हैं, वाई दी, व्हाट आर बिहाइंड दिस, क्या क्या रीजंस हैं। कबायली जो लोग हैं, ट्राइबल लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो तो अपनी इस हक हाकमियत को बरकरार रख सकेंगे। इसके बरकरार रखने के लिए ये तवानाई है, ये उनको बूस्टअप दे देता है। उनके जो महफल के हैं, उनके जो आप क्या जिरगे के हैं, तब सजेंगे जब ऐसे मामला होंगे। हम ऐसे मामला अपने अदालतों में दौर जदीद में आई थिंक देयर इज़ नो ट्राइबलिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब एग्जिस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप या अदालत को माने या फिर कबायलियत को माने या पाकिस्तानी कवानीन जो है उस पर चले या फिर अपने तौर से चीज़ों को हल करें। आप अगर आपने देखा कभी आज तक किसी बड़े ट्राइबल लॉर्ड या फ्यूडल लॉर्ड है, किसी बड़े कबायली या सरदार, किसी का भी मसला हो, उसने अपना मसला जो है कबायली तरीके पर चुप चुपा के अपने उस पर हल किया होगा? वो कोर्ट में दो भाई भी लड़ते हैं, अगर बंगले का क्लेश आता है तो वो कोर्ट में क्यों लड़ते हो? आज तक उन्होंने खुद ये नहीं कहा कि भाई हम दो बैठे हैं, हम कबायली। अभी मैं किसी का ज़ाती नहीं जाना चाहता, कोयटा में भी इधर यहाँ पर एक बंगले का मसला है, दो कबायली सरदारों का, वो अदालत में लड़ रहा है। तो वो कबायलियत को खुद तरजीह नहीं देते, गरीब के लिए तरजीह देते हैं, ताकि गरीब चक्कर काटे। इसी की बुनियाद पर वोट भी लेंगे गरीब को कि भाई आपका तो फिलाना मसला था, हमने जो है हल कर दिया। और पुलिस और लेवीज जो बाकी चीज़ें होते हैं, जुडिशरी वहाँ पर बहुत बड़ा कमज़ोर है। अब आज इस वाक़े में जो इस लड़के को गिरफ़्तार कर दिया गया, इसके बाद जो सूरत हाल है, तो वहाँ पर जो हमारा जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उन्होंने डीसी को भी नोटिस जारी किया, एसएचओ को भी नोटिस जारी किया कि भाई मुझे इस पर तफ्तीश करके दे दें।
2-3 दिन से इतना हाई प्रोफाइल केस है जो है, उस पर सिर्फ तफ्तीश अब मैं नहीं समझता हूँ कि काफ़ी है। ये होना चाहिए था कि उसको बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेट नहीं, करना अभी चाहिए। तक तो तफ्तीश चल रही है, 3 दिन हो गए बच्ची का। मुझे कोई जहाँ तक मैंने सुना है कि बच्ची बीमार भी है, उसके हालात भी सही नहीं है। बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन जो है वो एक तरफ इशारा किया, इस पर हमें भी खबर मिली थी। गालिबन इस बच्ची की जो हयात बीबी इनकी कोई दूसरी बहन है, तो उन्होंने किसी तवसत से ये खबर पहुंचाई है कि जो बच्ची का सूरत हाल है वो बहुत बिगड़ता जा रहा है, वो बहुत ख़राब है। इस सूरत हाल में बच्ची को जो है अगर रेस्क्यू नहीं किया गया, बचाया नहीं किया गया, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई अल्लाह न करे कोई बुरा वाक़या पेश आए जिसमें हमें बच्ची के जान से भी हाथ धोना पड़े, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन कबायली माशरा है चूँकि, तो लोग बहुत कम बोलते हैं इन चीज़ों पर। हमारी जो इंसानियत की एक दर्द है या दुख है, हम समझते हैं इस माशरे में कुछ बेहतर होना चाहिए, तो उसको बेहतर करने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट लेना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारे प्रोग्रेसिव लोग, हमारे एडवोकेट्स, हमारे नौजवान आगे नहीं आएंगे, तब तक ये बेहतरी नहीं होगा, वरना इसी तरह खबरें जो है दबती हैं। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने दौरान की बातें सुनी। यकीनन हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ इस तरह की ख़बरें आना, इस तरह वाक़यात रिपोर्ट होना बहुत कम है। एक वाक़या नहीं है, आए रोज़ इसी तरह वाक़यात होते रहते, लेकिन निज़ाम की वजह से, खौफ की वजह से, कबायलिज़म की वजह से चीज़ें दब जाती है। बहुत से बच्चियाँ अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती है, लेकिन किसी को कान ख़बर नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे इसी तरह के वाक़यात सामने लेके आए ताकि इंसानियत की खिदमत और आप लोग इससे आगाह हों। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।